today we'll be learning about the muscles of the upper limb. So this is a continuation of our series of the entire upper limb. In the previous lecture we have done about the brachial plexus, its branches, roots, cord division and all. And today we will be learning about all the muscles of the upper limb. Okay, so before learning the muscles of the upper limb, let us divide our upper limb into the three basic compartments so we can learn the muscles easily. Okay, so this is a schematic diagram of your hand. We can divide it into three compartments. Number one is this, number two this, and number three, make it pink, this. So we have three compartment in our upper limb. For sake of simplicity we have divided. Number one, all know, arm. Then number two, forearm, and number three, hand. We all know these three compartment. Okay, so if we say more anatomically, we called it as brachium, this as antebrachium, and hand remains the hand. Okay, one more thing I like to explain here. In the arm or in the forearm, they both can be divided into two compartments, the anterior compartment and the posterior compartment. मतलब एक आगे वाला हिस्सा, लेट्स सपोज ये पाम है आपकी, ठीक है, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट, एंड देन डॉर्सम नेल्स वाली साइड पे वो आपका पूरा दूसरा हाथ होगा, एंटीरियर आर्म एंड दी पोस्टीरियर आर्म, और पोस्टीरियर फोर आर्म, एंटीरियर फोर आर्म. ओके, so before going further understanding arm, anterior and posterior, listen first thing what I am saying. All the muscles in the anterior compartment has a majority or approx like 90% have the same function, which is flexion, and all the muscles in the posterior compartment, exceptions applied, has the one function which is the extension. Okay, I'm talking about upper limb here, upper limb. So what is extension and what is flexion? Let me show you in a animation. Okay, see this, we have arm. In the anterior compartment we have arranged the muscle, so you can see the muscles of the anterior compartment are contracting and bringing the arm towards you. This is flexion, and now the arm is going back. When it's going it's coming towards you, the muscles are contracting, and when they are going back, the muscles of the posterior compartment, which are not shown in the animation, are working. So this is flexion and this is extension. Okay, coming towards you is the flexion, and then it will go back at extension. You can see the anterior compartment muscle acting like जो आपकी तरफ लेकर आ रही है आगे वाली muscles, पीछे वाली muscles diagram में नहीं है जो extension करा रही है. तो flexion and then extension. Okay, I hope you understand what is flexion and what is extension. Now let's see the muscles of the anterior compartment. Let's go towards our notes. So we have learned this much now. The muscles, arm, forearm, hand, arm anterior, posterior, forearm anterior, posterior, hand posterior, don't say posterior. Okay, so anterior compartment of the arm, we have three muscles, B, B, C, bicep brachii, brachialis, and coracobrachialis. So we have three, bicep brachii, brachialis, and coracobrachialis. Okay, so let's see, I want to show one thing. Suppose this is your arm. Okay, so this is coracobrachialis, this is brachialis, and on top of both of this you have bicep brachii. So this is the basic arrangement you can see here, you will see here, like coracobrachialis, फिर ब्रेकियालिस, और उन दोनों के ऊपर बाइसेप ब्रेकियाई. बाइसेप ब्रेकियाई इज अ लॉन्ग मसल. ओके, सो लेट्स सी इन द डायग्राम here. So I hope you know basic osteology of the upper limb. If you don't, I'll upload the lecture of this also. So this you can see, this is your scapula, this is your humerus, and in the scapula you have the coracoid process. Okay, so from the coracoid process to the shaft of the humerus to the brachium, we say na arm को हम brachium बोलते हैं, to the coracoid process to the brachium, the muscles is coracobrachialis. कोराकॉइड प्रोसेस से ब्रेकियम तक कोरेकोब्रेकियालिस. द नेक्स्ट मसल फ्रॉम द ब्रेकियम और शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, upper end, lower end, and shaft. This is how we divide the long bone. Okay, so this is the shaft. From the shaft of the humerus, more laterally to the ulnar tuberosity. In the ulnar bone we have one tuberosity, the ulnar tuberosity. Shaft of the humerus से लेके ulnar tuberosity तक एक मसल आएगी जिसको हम brachialis बोलेंगे. So we have done two muscles till now, coracobrachialis from the coracoid process, the shaft of the humerus, and brachialis from shaft to the ulnar tuberosity. Now इन दोनों के ऊपर एक बड़ी मसल्स आएगी जिसको हम बोलेंगे bicep brachii, जो कि है यहाँ पर. Bicep, as the name suggests, two heads. It will have two heads. Number one, short head. Number two, long head. Short head is attaching toward the coracoid process, same as the coracobrachialis. Okay, and long head is going into the intertubercular sulcus. As you all know, in the humerus we have the greater tubercle and the lesser tubercle, और उन दोनों ट्यूबरकल के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम इंटरट्यूबरकुलर सल्कस या इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव भी बोलते हैं. सो इस इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव के अंदर से हमारी बाइसेप ब्रेकियाई का टेंडन जाता है लॉन्ग हेड का, इसलिए इस ग्रूव का दूसरा नाम होता है बाइसिपिटल ग्रूव. जो बाइसिपिटल ग्रूव इसको कहते हैं वो इस बाइसेप ब्रेकियाई की मसल की वजह से ही नाम इसका पड़ा है. एंड देन इट ट्रेवल्स अलोंग इन द बाइसिपिटल ग्रूव एंड देन अटैच इनटू द सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल. So what is supraglenoid tubercle? Suppose
this is your scapula. Okay, and this is your glenoid cavity. So for the sake of simplicity, imagine this is the infraglenoid tubercle, glenoid के नीचे, and supraglenoid tubercle, glenoid के ऊपर. Okay, so these are going like this. उसके अंदर से जाएगा इंटरट्यूबरकुलर सर्कस से और ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर वाले एरिया पे सुपराग्लेनोइड ट्यूबरकल पे अटैच कर जाएगा. एंड बोथ दी लॉन्ग हेड एंड द शॉर्ट हेड कंबाइन फॉर्म द सेम टेंडन एंड अटैच इनटू द रेडियल ट्यूबरोसिटी. ओके, द पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन और जहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, ulnar tuberosity and the radial tuberosity. Listen very carefully. Brachialis insert into the ulnar tuberosity, bicep brachii insert into the radial tuberosity. Okay, don't confuse bicep, radial, brachialis, ulnar. So these are all the muscles in the anterior compartment. Now let's move into the posterior compartment of the arm. In the posterior compartment we have only one muscle, which is tricep. As the name suggests, tri means three, seps mean head. We have three head. We have long head, medial head एंड दी लेटरल हेड. यहाँ पे शॉर्ट नहीं होगा, मीडियल लेटरल लॉन्ग, मीडियल लेटरल लॉन्ग. ओके, सो यहाँ पे हर हेड का ओरिजिन इंसर्शन याद करने की जरूरत नहीं है. मेन है लॉन्ग हेड. लॉन्ग हेड का हमें पता होना चाहिए बिकॉज वी ऑल्सो हैव द लॉन्ग हेड इन दी बाइसेप. देखा था ना हमने बाइसेप्स का लॉन्ग हेड और ट्राइसेप्स का भी लॉन्ग हेड होता है और दोनों की यू कैन से ओरिजिन और इंसर्शन काइंड सेम जगह से होती है. ठीक है, यहाँ हमने देखा था लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप कहाँ से आ रहा था हमारा, इट विल कमिंग सुपराग्लेनोइड ट्यूबरकल से, और ट्राइसेप का लॉन्ग हेड आता है इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से. लेट मी शो यू अगेन. सो इमेजिन दिस इज योर स्कैपुला, दिस इज योर सुपराग्लेनोइड ट्यूबरकल जहाँ से हमारा बाइसेप का लॉन्ग हेड आ रहा था, एंड दिस इज द इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल जहाँ से हमारा ट्राइसेप का लॉन्ग हेड आएगा कुछ ऐसे. ओके, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड एंड मीडियल हेड. वन मोर थिंग, द मीडियल हेad is the largest head. This has been also asked in the exam, and all the fiber of the each head or all three heads combine and attach into the olecranon process. Okay, so this is the only muscle present in the posterior compartment of the arm. So let us summarize ताकि सबको याद हो जाए. आर्म, एंटीरियर. एंटीरियर में हमने तीन मसल देखी, BBC, ब्रेकियालिस, बाइसेप ब्रेकियाई एंड कोरेकोब्रेकियालिस, जिसमें ब्रेकियालिस और कोरेकोब्रेकियालिस नीचे थे एंड देन बाइसेप उन दोनों को कवर कर रहा था. इन द बाइसेप वी हैव लॉन्ग हेड and we have short head. Okay, then in the posterior compartment we have only one muscle, tricep. In the tricep we have long head, we have medial head and we have the lateral head. Our medial head is the largest and the long head of tricep originate from the infraglenoid tubercle, and here the bicep, the long head originate from the supraglenoid tubercle. Okay, I hope you understand everything. Okay, so now let's move to the forearm. Forearm same, we have anterior and we have posterior. Anterior जितनी भी मसल्स होंगी इनको हम फ्लेक्सार्स मसल बोलेंगे क्योंकि फ्लेक्शन कराएंगे, और पोस्टीरियरली जितनी भी मसल होंगी उसको हम एक्सटेंसार्स बोलेंगे क्योंकि हमारा वो एक्सटेंशन कराएंगे. व्हाट इज फ्लेक्शन, व्हाट इज एक्सटेंशन, आई हैव एक्सप्लेन यू अर्लियर. ओके, so in the forearm, or let's say in the anterior compartment, we have divided further into two, like superficial और deep intermediate layers. Okay, so पहले सबसे ऊपर जो मसल्स हैं, then जो डीप में मसल्स हैं हम वो देखने वाले हैं. So let's go to our note. Okay, so हमने देखा इंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हम डिवाइड कर देते हैं और जितनी भी इंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स होती हैं उसको हम फ्लेक्सार्स बोलते हैं क्योंकि उनका मेजर फंक्शन फ्लेक्शन ही होता है. सो हम एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म को हम सुपरफिशियल और डीप करके भी हम इसको बुला सकते हैं. ओके, सुपरफिशियल और डीप. सो फर्स्ट लेट्स सी सुपरफिशियल. इन द सुपरफिशियल कंपार्टमेंट वी बेसिकली हैव फोर मसल्स. ओके, नंबर वन. ओके, इसको छोड़ो, मेरे तरीके से इमेजिन करो. ठीक है, ये अपना आर्म है, ये हमारी थंब वाली साइड है, ये हमारी पिंकी फिंगर वाली साइड है, ऐसे. ये हमारा थंब वाली साइड है और ये हमारी छोटी उंगली वाली साइड है. ओके, तो छोटी उंगली वाली साइड हमारी एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं अल्ना, और अंगूठे वाली साइड हमारी एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं रेडियस. इमेजिन इन योर हैंड. ओके, ये अल्ना एंड देन रेडियस, और आगे की सारी जो मसल्स होती हैं वो हमारी फ्लेक्सर्स होती हैं. सो नाउ लेट्स सी द नेम वन बाय वन. एंटीरियर कंपार्टमेंट में है तो फ्लेक्सर, और ये शुरू होकर जा कहाँ तक रही है, हमारे कार्पल्स तक, तो कार्पाई. फ्लेक्सर कार्पाई कौन सी बोन की तरफ है, अल्ना, तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारस. ऐसे ही सेम अगर हम इस वाले लाइक मीडियल मोस्ट पार्ट से लेटरल मोस्ट पार्ट तक चलें तो हमारी जैसे यहाँ पे फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस थी, वैसे यहाँ पर होगी फ्लेक्सर जो आगे की तरफ है, कार्पाई कार्पल्स की तरफ जाएगी, रेडियस बोन की तरफ है तो रेडियालिस. फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस. सो इन दो मसल्स को तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस. नाउ यू विल आस्क मी लाइक इफ इट इज द मीडियल मोस्ट, व्हाई
इट इज़ नॉट द लेटरल मोस्ट बिकॉज रेडियस तो इधर है, इसको बिल्कुल इधर होना चाहिए था। सो यहाँ पे एक मसल पहले से प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेकियोरेडियालिस। दिस इज नॉट द मसल ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट, दिस इज द मसल ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, बट इतनी बड़ी है कि ये घूम के आगे तक आ गई। इट इज टू बिग टू अकोमोडेट ओनली इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, सो ये आगे भी आ जाती है। ओके, सो दो मसल अभी तक हमें अच्छे से याद हो गए जिसको हमें अब और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस इन द अल्ना साइड, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस इन द लेटरल साइड, in the radius side. Okay, now what I want you to do is take your hand, join your pinky finger to your thumb, and in your carpal side area, in the wrist area, you will see a eminence, a prominent eminence coming out, elevation. So this is the tendon of your palmaris longus muscle. Okay, so we have done three muscles: the flexor carpi ulnaris, the flexor carpi radialis, and your palmaris longus. Now the fourth muscle is also the component of your cubital fossa. This is present near your elbow and is a rectangular shaped muscle called the pronator teres. Okay, so we have four muscles. One which does the flexion attached to the carpals and present on the ulna side, flexor carpi ulnaris. Second does the function of flexion attached to the carpals and present on the radial side, flexor carpi radialis. And then in between palmaris longus, and then near your elbow joint you have the pronator teres muscle. So these are the four muscles. Let's revise: flexor carpi ulnaris, flexor carpi radialis, palmaris longus, and pronator teres. You have to remember by this. Okay, now let's move to the deep compartment or the intermediate or deep compartments. Okay, so we have understood that they will done the function of flexion. Okay, so now see, this muscle is present and it's going into your digits. In the superficial compartment, the muscles are coming and attaching here in the carpal area. That's why we are saying the flexor carpi ulnaris, flexor carpi radialis. But in the deep compartment, the muscles are going more deep, more distal, you can say, into your digits. So here what we'll say, flexor, because present in the anterior compartment, it should be flexor. Okay, it will be going to your digits. So flexor digitorum. Now for some time forgot this superficialis. Okay, flexor digitorum. Now come to another diagram. Here also one muscle is present. It is coming like this to the digits. This is also flexor digitorum. Now we have two flexor digitorum, flexor digitorum. So how will we differentiate? Okay, see, this is terminating here, but this one is coming to your more distal phalanx. Okay, and this one is present superficially to this, not in the superficial layer but superficially to this. That's why we have differentiate these by giving different name. Number one, flexor digitorum superficialis, जो कि बहुत इससे ज़्यादा comparatively इससे superficial layer में है, flexor digitorum superficialis, जो कि end कहाँ हो रही है, it is not coming to the more distal phalanx. Okay, flexor digitorum superficialis, and we have the flexor digitorum profunda. Profunda is the word used for deep. Okay, so we have two flexors here, the flexor digitorum superficialis, the flexor digitorum profunda. Now we know कि हमारे थंब को कुछ अलग प्रिविलेज मिली है हमारी बॉडी के अंदर, उसका जॉइंट भी अलग होता है, सैडल जॉइंट, तो उसकी मसल भी हम अलग देंगे। हम जितनी मसल्स देंगे ये सारी हमारे डिजिट्स के लिए थी, वो 4 डिजिट्स के लिए थी, थंब के लिए नहीं थी। थंब को बहुत रिस्पेक्ट है हमारी बॉडी में, सो एक अलग मसल उसके लिए जाने वाली है। आगे है तो फ्लेक्सार होगी, थंब को हम बोलते हैं पॉलिसिस, तो फ्लेक्सार पॉलिसिस, और इतनी लंबी मसल है तो लॉन्गस, सो फ्लेक्सार पॉलिसिस लॉन्गस। सो वी हैव कंप्लीटेड 3 मसल। सबसे पहले थंब को दे दो, थंब की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, उसको एक मसल दो, छुट्टी करो। आगे है तो फ्लेक्सार, अंगूठे तक जा रही है तो पॉलिसिस, लंबी मसल है तो लॉन्गस, फ्लेक्सार पॉलिसिस लॉन्गस, डन। 4 out of 1 वी हैव कंप्लीटेड। ओके, सो वी हैव सीन 1 मसल एंड आगे है तो फ्लेक्सार डिजिट तक जा रही है मगर डिस्टल मोस्ट तक नहीं जा रही है और ऊपर सुपरफिशियली प्रेजेंट है, तो फ्लेक्सार आगे है तो डिजिट्स तक जा रही है, डिजिटोरम सुपरफिशियल है तो सुपरफिशियालिस, फ्लेक्सार डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। सेम अगर वो फ्लेक्शन आगे है तो फ्लेक्शन डिजिटोरम डिजिट्स तक जा रही है और थोड़ा डीप है और डिस्टल मोस्ट फैलेंक्स तक जा रही है तो फ्लेक्सार डिजिटोरम प्रोफंडा। एंड वन मोर मसल इज अ क्यूबॉइडल और रेक्टेंगुलर शेप मसल प्रेजेंट नियर योर रिस्ट. It is the pronator quadratus. Quad means 4 and rectangle has the 4 side. Pronator quadratus. Okay, now let's see again. आगे है तो फ्लेक्शन डिजिट्स तक जाएगी, डिजिटोरम, सुपरफिशियली है तो सुपरफिशियालिस, फ्लेक्सार डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। आगे है एंटीरियर में है तो फ्लेक्सर, डिजिट्स तक जा रही है डिजिटोरम, डीप है तो डीप या फिर प्रोफंडा, फ्लेक्सार डिजिटोरम प्रोफंडा। थंब को अलग इंपॉर्टेंस है, आगे है तो फ्लेक्सार, थंब तक जा रही है तो पॉलिसिस, लंबी मसल है तो लॉन्गस, फ्लेक्सार पॉलिसिस लॉन्गस। और एक मसल जो रिस्ट के पास है प्रोनेटर क्वाड्रेटस. क्वाड्रेटस मींस 4, रेक्टेंगल हैज 4 साइड, तो दिस इज द रेक्टेंगुलर शेप मसल. So these are all the muscles in the anterior compartment of the forearm, be it deep and be it superficial. Compartment of the forearm. Now we will see about the posterior compartment of the forearm, and if you have done the anterior compartment well, the posterior compartment will be a piece of cake for you. Okay, so हमने देखा था कि anterior compartment में सारी मसल्स को हम एक्सटेंस फ्लेक्सार्स बोलते थे, वैसे ही posterior compartment की सारी मसल्स को हम एक्सटेंसार्स मसल बोलेंगे क्योंकि वो एक्सटेंशन कराएंगी। जैसे anterior compartment सुपरफिशियल और डीप में था वैसे ही posterior compartment भी सुपरफिशियल और डीप में है। ओके,
देखो कंपार्टमेंट भले से बदल गया, हम आगे से पीछे की साइड से हम देख रहे हैं, लेकिन जो फोरआर्म के अंदर बोन थी हमारी, रेडियस और अल्ना, दे विल बी सेम हेयर ऑल्सो। हाथ पे तो रेडियस अल्ना ही रहेगी ना भाई, अब आगे से देखो या पीछे से देखो तो मसल्स भी यहाँ पे उसी के रिलेशन में होंगी। जैसे हमने एंटीरियर कंपार्टमेंट में जस्ट अभी देखा है कि एक मसल होगी जो आगे प्रेजेंट होगी, मतलब फ्लेक्सर कार्पस तक जाएगी, कार्पाई अल्ना वाली साइड पर होगी तो अल्नारिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। वैसे ही अगर कोई मसल आगे ना होकर पीछे कंपार्टमेंट में आ जाएगी तो एक्सटेंसर कार्पस तक जाएगी तो कार्पाई, और अल्ना वाली साइड पर होगी तो अल्नारिस। सो एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, सिंपल। अगर एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस है तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस भी होगा, बट हियर द कैच, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में वी हैव टू एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस, द लॉन्गेस्ट एंड द ब्रेविस। जहां पे हमें दो मसल दिख जाती है हम उसको लॉन्ग और ब्रेविस बोल देते हैं। यू कैन सी दिस इज द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गेस्ट एंड दिस वन इज द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। ओके, डायग्राम देख कंफ्यूज ना होना, ये मसल थोड़ी नीचे है तो इसको हटाओगे तो ये बड़ी मसल दिखेगी, यहाँ पे छोटी दिख रही है भले लेकिन ये बड़ी है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गेस्ट एंड देन द स्मॉल एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। ठीक है, एक बार और अच्छे से समझाता हूँ। आगे की तरफ पीछे की तरफ है तो एक्सटेंसर, कार्पस तक जा रही है तो कार्पाई, अल्ना वाली साइड पर है तो अल्नारिस, फ्लेक्स एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। पीछे वाली साइड पर है तो एक्सटेंसर, कार्पस तक जा रही है तो कार्पाई, रेडियस वाली साइड पर है तो रेडियालिस, लॉन्ग है तो लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। पीछे वाली साइड पर है तो एक्सटेंसर, कार्पस तक जा रही है तो कार्पाई, रेडियस वाली साइड पर है तो रेडियालिस, और स्मॉल मसल है तो रेडियालिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। ओके, नाउ लेट अस सी हमने ऊपर क्या करा था। हमने थंब को एक अलग मसल दी थी, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, है ना। तो हमने ऐसा क्यों करा था, देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने हाथ को लेके। ओके, टेक योर हैंड एंड प्लेस लाइक हथेली की तरफ से अपना हाथ सामने रखो बिल्कुल स्ट्रेट, एंड देन फ्लिप योर हैंड, मतलब एंटीरियर से पोस्टीरियर में जाने की कोशिश करो। सो व्हाट विल यू इमेजिन कि जिधर जिस साइड तुम्हारी पहले थंब था, अब तो तुम फ्लिप कर रहे हो अपने हाथ को तो उस साइड तुम्हारी पिंकी फिंगर जा रही है। इट इज़ जस्ट फॉर दी सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो, समझ आएगा तो बहुत अच्छा समझ आएगा। ठीक है, जहां पर पहले तुम्हारा थंब था, अगर तुमने अपना हाथ एंटीरियर कंपार्टमेंट में रख रखा था, उस इमेजिनरी पोजीशन में उस जगह पर तुम्हारी पिंकी फिंगर है। तो पोस्टीरियर, जैसे हमने एंटीरियर कंपार्टमेंट में थंब को एक अलग मसल दी है, वैसे ही हमें पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में पिंकी फिंगर को अलग से मसल देनी पड़ेगी। ये जो मैंने हाथ को घुमाने का इतना समझाया है, ये जस्ट सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मैंने इस तरह याद करा था, अगर ना हो तो सिंपल रट लो। जैसे हमने इंटीरियर कंपार्टमेंट में थंब को अलग मसल दी थी, वैसे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में पिंकी फिंगर को या डिजिटाई मिनिमाई को हम एक अलग मसल देंगे। सो ये आ रही पीछे की तरफ है तो एक्सटेंसर, और ये छोटी उंगली की तरफ आ रही है। अब छोटी उंगली को हम क्या बोलेंगे एनाटॉमिकली वे में, डिजिटाई मिनिमाई, डिजिट सबसे छोटा वाला, extensor digiti minimi. So we have done four muscle, extensor carpi ulnaris done, extensor carpi radialis longus done, extensor carpi radialis brevis done, extensor digiti minimi done. अब छोटी उंगली को दे दी, अब बचे हुए को भी दे दो, एक्सटेंसर डिजिटोरम, सारे डिजिट्स के लिए एक्सटेंसर डिजिटोरम। यहाँ पे कोई सुपरफिशियल डीप नहीं है। ऊपर हमने देखा था फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडा, वहाँ पे क्यों था कि वहाँ दो मसल थी, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे सिंपल एक्सटेंसर डिजिटोरम है। ओके, सो दीस आर दी मसल ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट सुपरफिशियली। वन मोर थिंग, हमने फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस पीछे देखा था ना, तो ये थोड़ा टर्न लेके आगे भी आती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, तो इसलिए हमने इस डायग्राम के अंदर ना यहाँ से इसको कट करके देखा है। तो हेयर विल बी योर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। ओके, तो जैसे हमें ऊपर ब्रेकियालिस दिख रही थी, इधर हमें फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस दिखेगी, बिकॉज इट इज अ बिग मसल। नाउ लेट्स रिवाइज। सबसे पहले फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस होगा, देन फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस के दो होंगे, लॉन्गस और ब्रेविस, देन एक मसल होगी जो हम, सॉरी मैंने फ्लेक्सर बोल दिया, तो सबसे पहले एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस होगा, देन एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस होंगे दो, लॉन्गस एंड ब्रेविस, देन एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई होगा, एंड देन एक्सटेंसर डिजिटोरम होगा। तो दीज आर ऑल द मसल्स ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल लेयर। नाउ लेट्स मूव योर focus into the deep muscles. Now before going to the deep compartment of the posterior forearm, see this yo-yo honey sing sign. I have made it for a purpose here. Your thumb, your digiti minimi, and your index finger. In the posterior compartment, these three have their different muscles, you can say. The extensor pollicis, extensor digiti minimi एंड एक्सटेंसर इंडाइसिस। सो एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमम हमने सुपरफिशियल कंपार्टमेंट में देख लिया है। सो अब डीप कंपार्टमेंट में हमें ये दोनों मिलेंगे, यानी कि एक्सटेंसर पॉलिसिस और एक्सटेंसर इंडाइसिस। इंडाइसिस आया है इंडेक्स फिंगर से, हमारी इंडेक्स फिंगर है ना, तो एक्सटेंसर इंडाइसिस। ओके, सबसे पहले इन्हीं को देखते हैं। तो ये मसल्स आई गई हमारी इंडेक्स फिंगर पे, तो एक्सटेंसर इंडाइसिस क्लियर। ये मसल आई मेरे थंब तक जा रही है, तो एक्सटेंसर पॉलिसिस, एक छोटी एक बड़ी है तो लॉन्गस एंड ब्रेविस। दिस विल बी योर लॉन्गस एंड दिस विल बी योर ब्रेविस। सो एक्सटेंसर इंडाइसिस, एक्सटेंसर पॉलिसिस, दो है, लॉन्ग है तो लॉन्गस और छोटी है तो ब्रेविस। अब एक मसल ऑल होगी, वो भी हमारे थंब के लिए है, एंड दैट इज फॉर द एबडक्शन, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। एबडक्टर का मतलब बॉडी से दूर लेके जाना, मतलब अपने थंब को लो और पांचों उंगलियों को मिला लो एंड देन मेक इट गो अवे फ्रॉम योर रेस्ट ऑफ द फिंगर। दिस इज कॉल्ड एबडक्शन ऑफ द थंब। सो अनदर मसल विल बी एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। सो फोर मसल इन द डीप कंपार्टमेंट क्या क्या है। सबसे पहले एक्सटेंसर इंडाइसिस, इधर देखते हैं।
सो कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले इससे ले लो एक्सटेंसार इंडाइसिस, देन इससे ले लो एक्सटेंसार पॉलिसिस, दो होंगी, एक लॉन्गस और एक ब्रेविस, एंड देन एबडक्टार, इसके लिए पॉलिसिस एंड लॉन्गस. सो दीज विल बी द थ्री मसल्स, सो दीज विल बी द फोर मसल्स इन योर डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म. अब यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगा, दो चीज़ें मेरी याद रखना जो आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फर्दर टॉपिक के अंदर, बीट एनाटॉमिकल, स्नफ बॉक्स और एवरीथिंग. रिमेंबर दीज टू एज अ ब्रदर, कि ये दो भाई हैं, ये दो हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा. एबडक्टार पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसार पॉलिसिस ब्रेविस. अभी समझ नहीं आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन जब हम फर्दर टॉपिक पढ़ेंगे, कार्पल टनल सिंड्रोम पढ़ेंगे, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स पढ़ेंगे, एंड फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पढ़ेंगे, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम पढ़ेंगे, तब इस बात की इंपॉर्टेंस पता चलेगी. रिमेंबर दीज टू, एबडक्टार पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसार पॉलिसिस ब्रेविस टुगेदर. ये दोनों भाई हैं, ये दोनों हर जगह साथ ही आने वाले हैं. ओके ओके, मुझे पता है बहुत कंफ्यूजिंग हो गया. सो लेट अस रिवाइज ऑल दी मसल्स इन दी फोरआर्म. जस्ट सिंपल रिवीजन, देखते जाओ, पढ़ पढ़ के याद होता है, एकदम नहीं याद होगा. एंटीरियर कंपार्टमेंट, एंटीरियर में भी अगर हम चलते हैं सुपरफिशियली, तो हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमारे पास एक बोन है अल्ना, तो आगे की तरफ है तो फ्लेक्शन, फ्लेक्सार, कार्पस तक जा रही है कार्पाई, रेडियस की अल्ना की तरफ है तो अल्ना, अल्नारिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस. देन आगे की तरफ है तो फ्लेक्सार, कार्पस तक जा रही है तो कार्पाई, और रेडियस वाली बोन की तरफ है तो रेडियालिस, फ्लेक्सार कार्पाई रेडियालिस. इन दोनों के बीच में जो हम थंब और पिंकी फिंगर को मिलाएंगे तो आएगी पाल्मारिस लॉन्गस. एंड देन वी हैव वन मसल नियर द एल्बो विच इज योर प्रोनेटर टेरिस. These are the all the superficial muscle. Now let's go into the deep layer. In the deep what we have, number one, आगे है तो फ्लेक्सार, डिजिट्स तक जाएगी तो डिजिटोरम. अब ये हमारी डिजिटोरम दो होती हैं, एक होती है हमारी सुपरफिशियालिस और एक होती है प्रोफंडा. फ्लेक्सार डिजिटोरम सुपरफिशियालिस एंड फ्लेक्सार डिजिटोरम प्रोफंडा. एंड अनदर वन हमारी कौन सी होती है जो हमारे अंगूठे को हमने अलग से दी थी? फ्लेक्सार पॉलिसिस लॉन्गस. एंड वन मोर मसल रिमेनिंग विच इज द प्रोनेटर क्वाड्रेटस, जो कि हमारी ट्राइंगुलर शेप की थी. दीज आर दी मसल्स इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट. खत्म. Now in the posterior compartment, in the superficial layer, what we have in the posterior compartment, we will be having all the extensor muscle. तो सबसे पहले एक्सटेंसार पीछे की तरफ है, कार्पस तक जा रही है तो कार्पाई, अल्ना वाली बोन की तरफ है तो अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस. सिमिलरली विल बी हैविंग एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस, और याद रहे रेडियालिस होती हैं दो, लॉन्गस एंड ब्रेविस. एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस. एंड देन हमने छोटी उंगली को अलग यहाँ पे दी थी, एक्सटेंसार डिजिटाई मिनिमाई सुपरफिशियल वाली जगह पे, और सारे डिजिट्स के लिए हमारी एक ही थी, एक्सटेंसार डिजिटोरम. नाउ लेट्स मूव इनटू द डीप कंपार्टमेंट. इन द डीप कंपार्टमेंट हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने ये वाला साइन बनाया था, तो यहाँ पे एक्सटेंसार इंडाइसिस थी, देन एक्सटेंसार पॉलिसिस थी, पॉलिसिस भी हमारी जो थी वो भी दो थी, एक्सटेंसार पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसार पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसार पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसार पॉलिसिस ब्रेविस. एंड देन वन मोर जो मैंने बोला था वो थी एबडक्टार पॉलिसिस लॉन्गस. और एट लास्ट मैंने एक चीज़ बोली थी कि एक्सटेंसार पॉलिसिस ब्रेविस और एबडक्टार पॉलिसिस लॉन्गस आर ब्रोस. So these are all the muscles of the forearm. Now let's move to the muscles of the hand. In the hand basically we have 20 muscles. ठीक है, चार चार के पांच ग्रुप होते हैं, 4 5 20, मतलब चार चार के पांच सेट, 20 मसल. सबसे पहली चार मसल का ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं थिनार मसल्स. सेकेंड फोर वी हैव द हाइपोथिनार मसल्स. थर्ड फोर we have the lumbricalis. Then we have the interossei, the palmar interossei 4 and the dorsal interossei, which are also 4 in the number. So we have total 20 muscles in the hand. Okay, so this is our hand, this is our thumb side, and this is our pinky finger side. So in the thumb side, T for thumb, T for thenar. So in the thumb side we will be having our thenar muscles. Okay, let us suppose इस इमेज को देखो, और इसको इमेज को मत देखो, अपने थंब को लो और लेट स्टार्ट मूविंग योर थंब. सी लाइक what function it can do. Like it can flex, come towards your body, it can abduct, and it can oppose the finger. So basically we have three major functions: the flexion, the abduction, and the opposition. So according to these we have named these muscle. The flexor पॉलिसिस ब्रेविस. हर थिनार मसल के लिए पॉलिसिस ब्रेविस लगाना है हमें. मेजरली बताऊंगा कहाँ पे नहीं लगाना है, मतलब मान के चलो थिनार आएगा तो हम पॉलिसिस ब्रेविस लगाएंगे. तो पहली मसल्स होगी फ्लेक्सार पॉलिसिस ब्रेविस फंक्शन के हिसाब से. सेकंड हमने फंक्शन देखा था एबडक्शन होता है तो एबडक्टार पॉलिसिस ब्रेविस. थर्ड हमने देखा था ऑपोजिशन होता है तो हम बोलेंगे ओपोनेंस पॉलिसिस. ओपोनेंस पॉलिसिस, यहाँ पॉलिसिस ब्रेविस नहीं है, दो में पॉलिसिस ब्रेविस रहेगा और दो में सिर्फ पॉलिसिस रहेगा. तो अभी चौथे को तो भूल ही जाओ, बताऊंगा चौथे के बारे में. फर्स्ट सी दिस, नंबर 1 द फ्लेक्सार पॉलिसिस ब्रेविस, नंबर 2 एबडक्टार पॉलिसिस ब्रेविस, नंबर 3 ओपोनेंस पॉलिसिस. स्पेशल स्पेलिंग गलत नहीं है, मैंने ओपोजिशन लिखा है ताकि मुझे याद रहे फंक्शन से, क्योंकि फंक्शन से आसान रहता है ना. फ्लेक्शन कर रही है, एबडक्शन कर रही है, ओपोजिशन कर रही है. अगर ये फंक्शंस आपको क्लियर है ना कि फ्लेक्शन क्या होता है, एबडक्शन क्या होता है, ओपोजिशन क्या होता है, सो इट विल बी वेरी इजी. आई जस्ट टेक माई थंब एंड रिमेंबर, अच्छा ये फ्लेक्शन कर रहा है, अभी एबडक्शन कर रहा है, अभी ओपोजिशन कर रहा है. तो इस तरीके से याद रखना आसान है. सेम गोज विद हाइपोथिनार, यही सेम तीन चीज़ें यहाँ पर होंगी. और हाइपोथिनार हमारा छोटी उंगली की तरफ है तो यहाँ पे इसको हम डिजिटाई मिनिमाई बोलेंगे. फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई, एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई.
अब चौथी मसल दोनों के अंदर होती है डिफरेंट, मतलब 3 मसल तो देखा जाए तो अप्रॉक्स सेम है ना, थीनार में और हाइपोथीनार के अंदर। एक है फ्लेक्सार, एक है एब्डक्टार, एक है ओपोनेंस। इसके अंदर हम डिजिटाई मिनिमाई लगा देंगे, उसके अंदर हम पॉलिसिस ब्रेविस और पॉलिसिस लगा देंगे। चौथी मसल के अंदर डिफरेंस है, चौथी मसल जो हमारे थीनार के अंदर है वो है एडक्टार पॉलिसिस। पॉलिसिस तो हमें पता है आएगा ही आएगा। एडक्टार मतलब यहाँ पे एबडक्शन भी होगा, यहाँ पे एडक्शन भी होगा। तो यहाँ पे थीनार कौन कौन सी 4 थीनार हमारे पास अब हो गई हैं? नंबर 1 फ्लेक्सार पॉलिसिस ब्रेविस, नंबर 2 एबडक्टार पॉलिसिस ब्रेविस, एबडक्टार पॉलिसिस ब्रेविस, नंबर 3 ओपोनेंस पॉलिसिस एंड नंबर 4 एडक्टार एडक्टार पॉलिसिस। याद रखना एबडक्शन पॉलिसिस ब्रेविस है और एडक्टार पॉलिसिस है, मतलब जहां पर बी है वहीं पर बी आएगा, यहाँ पर बी नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ पॉलिसिस आएगा, बी नहीं आएगा। Okay, now let's see thenar. We have flexor digiti minimi, abductor digiti minimi, opponens digiti minimi, and one thing which is the palmaris brevis. Palmaris brevis. What we have? Palmaris brevis. So we have done the 8 muscle till now. Don't focus on the nerve supply yet. I will show you or make you learn each and every nerve supply like where it's go. For now, just don't focus here because you will get confused. Now just try to remember the names of the muscles. So मैंने क्या बताया? 4 थीनार हैं, 4 हाइपोथीनार है, और बिलीव में यही वो मसल है, थोड़ी टफ है। इसके बाद सारी मसल सिंपल है और ये भी कोई टफ नहीं है। 3 तो दोनों 6 मसल तो सेम ही है ना, 3 इसमें 3 इसमें, फ्लेक्सार एबडक्टार ओपोनेंस। तो फ्लेक्सार पॉलिसिस ब्रेविस, एबडक्टार पॉलिसिस ब्रेविस, ओपोनेंस पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सार डिजिटाई मिनिमाई, एबडक्टार डिजिटाई मिनिमाई, ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई। याद तो अपने को सिर्फ ये करना है, एडक्टार पॉलिसिस एंड पाल्मारिस ब्रेविस. So these are the thenar muscle. Now thenar and hypothenar done. Now we will be moving to our lumbricalis or lumbricals. We have 4 lumbricals, L1, L2, L3 and L4. कैसा दिखता है? You can see here. Okay. So L1 और L2 यानी कि L1 और L2 आर यूनिपिनेट। अगर मैं जूम करूँ तो मैं दिख रहा होगा इनके फाइबर्स कुछ इस तरीके से जा रहे हैं। वेराज L3 को देखो और L4 को देखो, कुछ इस तरीके से इनके फाइबर आ रहे हैं। तो यूनिपिनेट मतलब एक ही तरफ इनके फाइबर जा रहे हैं, और बाईपिनेट मतलब दो तरफ फाइबर जा रहे हैं, मतलब डबल फाइबर है। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट। L1 L2 यूनिपिनेट, L3 L4 बाईपिनेट, मतलब लेटरल टू यूनिपिनेट एंड मीडियल टू बाईपिनेट। अब फंक्शन क्या है इनका? लिसन, इनका फंक्शन है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन कराना और इंटरफेरेंजियल जॉइंट के ऊपर एक्सटेंशन कराना। मतलब मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, दीज आर योर मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस। मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट यानी कि यहाँ पे एक्सटेंशन कराना। ओरिजिन इंसर्शन, दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम दी फ्लेक्सार डिजिटोरम प्रोफंडा एंड इंसर्टेड इनटू द एक्सटेंसार हुड। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 4 लम्ब्रिकल्स होते हैं, 2 यूनिपिनेट होते हैं एंड 2 बाइपिनेट होते हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। चौथी मसल और पांचवी मसल जो हमारी है वो है इंटरोशियस। 2 इंटरोशियस होती हैं, एक पाम वाली साइड पर होती है, हथेली वाली साइड पे, तो उसको बोलते हैं पाल्मर इंटरोशियस। एक पीछे वाली साइड पर होती है, नाखून वाली साइड पे, जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल इंटरोशियस। ठीक है, दोनों 4 होती हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इमेजिन सी, पाल्मर इंटरोशियस जो है वो यूनिपिनेट है। इमेजिन करो बीच वाली फिंगर है, बीच वाली फिंगर को एज अ लाइन ऑफ हम वो माने अपना सेंटर मान के दोनों तरफ उसके मसल्स निकाल दो। सिंपल यही है। बीच वाले के ऊपर पाल्मर इंटरोशियस प्रेजेंट नहीं होती है, मिडिल फिंगर के ऊपर, वो बाकी 4 उंगलियों पर प्रेजेंट होती है, यूनिपिनेट। whereas dorsal interosseae होती है बाईपिनेट। यू कैन सी इन द डायग्राम इट इज यूनिपिन बाईपिनेट, और ये लास्ट 2 पे प्रेजेंट नहीं होती है, यानी कि पिंकी फिंगर और थंब के ऊपर नहीं प्रेजेंट होती है। वेराज पाम इंट्रोशियस मिडिल फिंगर प्रेजेंट नहीं होती है। इतना इसके अंदर याद रखना है। दोबारा बताता हूँ, इंट्रोशियस के ऊपर हमें क्या याद रखना है? 2 इंट्रोशियस होती हैं, पाल्मर और डॉर्सल। पाल्मर वाली मिडिल फिंगर पे नहीं होती है और यूनिपिनेट होती है, डॉर्सल वाली थंब और पिंकी फिंगर पे नहीं होती है और बाईपिनेट होती है। फंक्शन, द फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिपिनेट एंड बाईपिनेट। यू कैन रिमेंबर द its function as pad and dab, यानी कि palmar interosseous, P for palmar interosseous, and function is adduction, pad palmar interosseous adduction, and dab dorsal interosseous abduction, dorsal interosseous abduction. Okay, so now let's see or summarize all the muscles in the hand. I hope it is very important because मुझे पता है सब खिचड़ी बन गया होगा। 20 मसल्स हैं, 4 4 4 4 4 4 5 20। पहली मसल से हाइपोथिनार, हाइपोथिनार, और दूसरी मसल से हमारी पहली मसल से थीनार, दूसरी मसल से हाइपोथिनार। दोनों के अंदर 3 मसल्स कॉमन होने वाली हैं, फ्लेक्सार, एडक्टार और ओपोनेंस। ठीक है, थीनार की अगर बात करोगे तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? पॉलिसिस ब्रेविस, पॉलिसिस ब्रेविस और पॉलिसिस। हाइपोथिनार की बात करोगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? डिजिटाई मिनिमाई, डिजिटाई मिनिमाई, डिजिटाई मिनिमाई। और एक मसल जो दोनों के अंदर अलग है वो हमारी थीनार के अंदर कौन सी थी? एबडक्टार पॉलिसिस, और हाइपोथिनार के अंदर कौन सी थी? पाल्मैरिस ब्रेविस। 8 मसल डन हो चुके हैं यहाँ पे। देन अगला वी हैव लम्ब्रिकल्स। लम्ब्रिकल्स वी हैव L1 L2 L3 एंड L4। L1 एंड L2 मेरे यूनिपिनेट थे, L3 एंड L4 मेरे बाईपिनेट थे। देन वी हैव 8 इंट्रोशियस टोटल, 4 पाल्मर और 4 डॉर्सल।
पार्मल इंटरऑस्टियस का फंक्शन क्या था, याद रखूंगा पैड से, यानी कि पार्मल वाले पामर वाले कराएंगे एडक्शन, और डैब वालों को डॉर्सल वालों को मैं याद रखूंगा डैब से, डॉर्सल वाले कराएंगे एबडक्शन। पाल्मर आर यूनिपिनेट, डॉर्सल आर बाइपिनेट। डन, फिनिश। थैंक यू।